Good morning, students. Hope you are fine. Today we will start chapter 1 of SPL. SPL means Social and Political Life. This is a part of your SS subject that earlier was known as Civics or Political Science. Now let's start chapter 1, our Constitution. Before starting chapter, I would like to share some facts that when we got independence from British in 1947, then there was a need to run the government properly because earlier India was governed by the Britishers. So by after getting independence, there was the need of rules and regulations to run the country. Then, under the leadership of Dr. B.R. Ambedkar, the Constituent Assembly framed Constitution of India in 2 years, 11 months and 18 days. Means almost it took 3 years to frame there, and it was implemented on 26 January 1950. Now our constitution. A constitution shows independence means if any country has its constitution, it shows its independence means that is an independent country. Our constitution defines the powers and responsibilities of each organ of the government. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. दैट आर क्या है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? द लेजिस्लेचर विच मेक लॉज रूल्स, द एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते इम्प्लीमेंट करते हैं रूल्स को, एंड जुडिशरी हु गिव जजमेंट. इट कंटेन्स आर नेशनल गोल्स. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? हमारे गोल्स. कौन से गोल्स हैं? डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म. एंड टू अचीव दीज गोल्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट आर कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ मीनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. A constitution is a fundamental legal document that contains the rules according to which the government of a country functions. Means कॉन्स्टिट्यूशन वो फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट है, वो लेख है जिसमें रूल्स लिखे हैं जिनके अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा. These rules or laws are called basic laws, and these are superior to all the laws of the country. Means country के जितने भी rules हैं उनसे सबसे superior कौन से हैं? वो rules जो constitution में लिखे गए हैं. Now the role of or the need for a constitution means कॉन्स्टिट्यूशन की क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों हमें फॉलो करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों क्या नीड है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री. मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री स्मूथली फंक्शन करे, स्मूथली रन करे, सो वी शुड नीड or we should follow constitution. Like when we play games, there are also some rules and regulations in the game, as well as there is rules in our constitutions also that all have to follow. The constitution is needed for the following reason. में यहाँ पे कुछ कारण है जो बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की. कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज सेफगार्ड्स ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन. में सिटीजन्स के जितने भी राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है. बिकॉज इन democratic country or in democratic government, citizens participate in the functioning of the government directly or indirectly. So it is the responsibility of the government to provide or to ensure
rights for all the citizens, means equal rights for all the citizens. So our constitution work as safeguard for the rights of the people. Now second point is a living document, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर डॉक्यूमेंट, सिर्फ क्या है, सिर्फ ये नहीं कि लिख दिया और ठीक है बस हो गया. इट इज लिविंग, मीन्स इट constantly grows and evolves according to the needs, requirements and aspirations or beliefs of the people of the country. मीन्स जैसे जैसे लोगों की नीड्स, रिक्वायरमेंट्स और बिलीफ्स चेंज होते रहते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस आते हैं. दैट शो दैट इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. थर्ड इज इट टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आर सोसाइटी. मीन्स हमारी सोसाइटी का नेचर कैसा है, मीन्स डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सेक्युलर है, ये कैसे पता लगता है? थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट इज the Constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon. Means you know that India is a diverse country, different people from different religion or community live in India. So when Constitution was framed earlier, it was they kept in mind about all the rights and regulations for all communities and all the people of the country. मीन्स ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन किया गया. में सभी कम्युनिटीज़ की नीड्स को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को ध्यान में रखे क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लिखे गए थे. तो कंट्रीज़ के लोगों के लिए भी क्या है कि वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है जिसको सब लोग उसको एग्री कर सके, सब लोग उसको एक्सेप्ट कर सके. नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं कि हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का क्या पॉलिटिकल सिस्टम है. पॉलिटिकल सिस्टम में कि लीडर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे. ऑल हैज़ बीन रिटन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या क्या रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर होनी चाहिए और क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए और क्या क्या अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, और ये भी चेक करना, कंट्रोल करना कि कोई अपने पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहा. Now next is a constitution ensures that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. और कॉन्स्टिट्यूशन क्या इंश्योर करता है, क्या देखता है कि जो भी डोमिनेंट ग्रुप है, यानी कि जो पावरफुल और जो रूलिंग ग्रुप है, वो अपनी पावर का मिसयूज लेस पावरफुल लोगों के ऊपर या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर तो नहीं कर रहा. It ensures that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. और क्या कॉन्स्टिट्यूशन श्योर करता है कि जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या रिसोर्सेज हैं, कहीं माइनॉरिटी मीन्स द पीपल हु आर लेस इन नंबर, जैसे मुस्लिम है इंडिया में माइनर हैं वो, तो और भी जैसे और कम्युनिटीज़ हैं कि कहीं कोई पर्टिकुलर मेजॉरिटी कम्युनिटी रिसोर्सेज का और अपॉर्चुनिटीज़ का खुद यूज़ करके माइनॉरिटीज़ को कहीं रोक तो नहीं रहा, उसको अलग तो नहीं कर रहा. इस चीज़ का ध्यान भी कौन रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज इट प्रिवेंट्स बोथ द इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन. मीन्स क्या करता है, किस चीज़ से बचाता है कि जो डोमिनेशन है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा किस किस के बीच में. इंटर कम्युनिटी मीन्स refers to one community dominating another. मीन्स कि एक कम्युनिटी कहीं दूसरी कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट तो नहीं कर रही, उसको अपना एक्सेसिव यूज़ तो नहीं कर रही पावर का. या फिर इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन मतलब कि मेंबर, सेम कम्युनिटी के मेंबर ही एक दूसरे के ऊपर रूल्स तो नहीं थोप रहे, अपने इम्पोज तो नहीं कर रहे या उनको डोमिनेट तो नहीं कर रहे. लास्ट इज Constitution help us guard against the situation. Which situation?
एडवर्स सिचुएशन की अगर कोई सिचुएशन आती है लाइक करप्शन की सिचुएशन है तो उसका जो भी बैड इफेक्ट पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उससे कौन बाहर निकलता है? कॉन्स्टिट्यूशन बाहर निकलता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो इन सब चीज़ों से लोगों को बचा के रखता है ताकि प्रॉपरली सब अपनी पावर्स का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सरसाइज कर सके, उसको यूज़ कर सके। Now next is features of the Indian Constitution और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट बिफोर what we say, our constitution start with the preamble. Preamble means an introduction in which the purpose of the constitution is given. मीन्स वो इंट्रोडक्टरी पेज जो क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या पर्पज है। इट कंटेन्स द आइडियल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेयर इज अ पिक्चर ऑफ प्रिएम्बल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज प्रिएम्बल। क्या लिखा है इसमें देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India with the sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all the citizens। मीन्स प्रेम्बल में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया कैसी कंट्री है? एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये क्या बता दिया कि इंडिया इस टाइप की कंट्री है। और वो क्या करती है? इंश्योर करती है कि सभी लोगों को जस्टिस मिले, लिबर्टी हो, इक्वालिटी यूज़ करें, सब एक्सरसाइज करें, फ्रेटर्निटी हो। This is the picture of preamble, or we can say preamble work as a mirror of the constitution. Now, features of the constitution. First is a detailed written constitution. Our constitution is the lengthiest constitution in the world. Means world में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो सभी संविधानों से सबसे लेंथी है, सबसे बड़ा है। नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गॉन इनटू सच माइन्यूट डिटेल्स। में जितनी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी माइन्यूटली, जितनी बारीकी से सभी एस्पेक्ट्स को, सभी आइडियल्स को, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है, डिटेल एक्सप्लेन की गई है, एज सच किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओरिजिनली इट वॉज डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स, क्योंकि अब इतना लेंदी है तो उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 22 पार्ट्स में, 395 आर्टिकल्स एंड 4 शेड्यूल्स। बट नाउ इट हैज़ 4 more schedules, means now Indian constitution has 12 schedules. It elaborates not only the governmental structure at the central, state और local level में से सिर्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही नहीं बताता, बल्कि क्या क्या बताता है? सिटीजनशिप के एक्सप्लेन करता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, लोगों की क्या राइट्स होने चाहिए, क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जैसे अगर राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं तो ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस को बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इलेक्शंस एक्सेट्रा। Now second is provision of amendment. Amendment means changes. As you know that Indian constitution is not a rigid constitution or complex. और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कि जो लिख दिया उसके बाद कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, नहीं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है? अमेंडमेंट का, मीन्स चेंजेस का। कि लगता है जब नीड्स और रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने में कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। दैट चेंजेस आर कॉल्ड अमेंडमेंट्स। और क्या करते हैं अमेंडमेंट्स? आर मेड टू रिमूव द डिफ़िकल्टीज दैट अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस टाइम टू टाइम जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो चेंजेस किए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड अमेंडमेंट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का भी प्रोविज़न है, एक प्रावधान है कि जिसको चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मीन्स इंडिया कैसी कंट्री है? सॉवरेन कंट्री है। दैट मीन्स इट इज़ फ्री फ्रॉम
एक्सटर्नल कंट्रोल मीन्स कोई भी विदेशी पावर का कंट्रोल नहीं है इंडिया पे। इट कैन फ्रेम इट्स ओन पॉलिसीज मीन्स किसी के दबाव में नहीं है कि हमें किसी को फॉलो करना है। नो मीन्स ये क्या शो करता है कि इंडिया कैसी कंट्री है, सॉवरेन कंट्री है। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेसी, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किससे शो होती है, जब हम लोग वोट देते हैं मीन्स व्हेन पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर representatives at all the levels by the method or by following universal adult franchise. I hope you have heard about universal adult franchise means it gives the power right to vote or it gives the right to vote means all the people who are 18 years or above can cast their vote without any discrimination on the basis of color, caste, religion, etc. And universal adult franchise also defines one vote, one value means हर वोट की सेम वैल्यू है। ये नहीं कि रिच पीपल के वोट की वैल्यू ज़्यादा है और पुअर पीपल के वोट की वैल्यू कम है। सो क्या शो करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया कैसी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया इज ऑल्सो अ रिपब्लिक, दिस मीन्स दैट द हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द नेशन कौन है, प्रेसिडेंट, एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया रिपब्लिक है जहाँ पे कौन है हेड, प्रेसिडेंट, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। और प्रेसिडेंट किस कहाँ से बनते हैं, जो लोग अपने ही रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं उन्हीं में से प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। आर प्रेसिडेंट इज नॉट अ हेरिडेटरी रूलर लाइक द ब्रिटिश मोनार्क, मीन्स हमारे प्रेसिडेंट कोई ये नहीं कि हेरिडेटरी नहीं है कि एक विरासत से, एक हेरिडिटी से दूसरी हेरिडिटी में सेम कम्युनिटी या सेम ग्रुप का वो पर्सन प्रेसिडेंट बनेगा। नाउ नेक्स्ट इज अ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर कंट्री। As you have seen in preamble that declares that India is a socialist and secular country. Democracy without universal adult franchise. Ensure political equality to its citizen means डेमोक्रेसी क्या शो करता है, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो क्या शो करता है कि पॉलिटिकली इक्वालिटी है, मीन्स सब लोगों के पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट है, तो मीन्स इट इज शोइंग इक्वालिटी without any basis of discrimination of caste, creed, color, sex, education, etc. means all people are equal in front of law or in front of constitution. India is a secular state. Secular means that all the citizens, irrespective of their religious beliefs, are equal before the law of the land. Means हर वो लोग चाहे वो किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के हों, दे ऑल आर इक्वल। द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन मीन्स जो स्टेट मीन्स जो नेशन है, जो कंट्री है, कंट्री की गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को तो नहीं कहती ना कि नहीं आप सब लोगों को यही रिलीजन फॉलो करना है। मीन्स द गवर्नमेंट कैन नॉट फ्रेम सच पॉलिसीज दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। में से क्या शो करता है सेक्युलरिज्म, कि जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाती जो एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के लिए बेनिफिशियल हो और दूसरी के लिए हार्मफुल। मीन्स all religious or religion or religious people are equal for government. Now next is federalism. You know that India is a vast country और vast country को चलाने के लिए कैसा सिस्टम है, कि वही सिस्टम नहीं, इंडिया में कैसा सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम इन विच मीन्स फेडरल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच there are more than one level of government in the country. कौन से लेवल इंडिया में, कौन से लेवल है गवर्नमेंट के, सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल में। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में वर्क करती है और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट स्टेट पे अपनी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। और स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू लोकल लेवल में। जो अब इतनी वास्ट कंट्री है तो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए क्या किया जाता है, डिफरेंट लेवल्स में क्या कर जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। और क्या होता है, जैसे नेशनल लेवल पर सिर्फ एक गवर्नमेंट तो वर्क नहीं कर सकती, इसलिए पावर्स को भी डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे।
दैट्स वाई देयर आर सम लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मीन्स मैटर्स जो हर एक पर्टिकुलर कंट्री और हर लेवल पे वर्क करती है, हर गवर्नमेंट हर लेवल पे वर्क करती है. दीज लिस्ट आर द यूनियन लिस्ट, द स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट मीन्स वो सब्जेक्ट्स, वो मैटर्स जिसको कौन डील करता है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, लाइक फाइनेंस, करेंसी, डिफेंस एक्सेट्रा. मीन्स इनसे रिलेटेड जो भी डील्स होती है, जो भी मैटर होते हैं, वो उनको कौन करता है हैंडल, यूनियन लिस्ट में आते हैं वो. कौन करता है उनको हैंडल, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है. लाइक अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो पूरे कंट्री में एक जैसे ही हुआ था ना, तो उसको किसने डील किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली उस पर चेंजेस कर सकते हैं. लाइक स्टेट लेवल में क्या आ सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा. और एक स्टेट दूसरे स्टेट को कंपेल नहीं कर सकती कि हम ये फॉलो करें तो आप भी उसी को फॉलो करें. लाइक अगर हरियाणा की गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ चेंजेस लाना चाहती है हरियाणा में, तो वो अपने हिसाब से करेंगे. पंजाब गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेगी. सेम हेल्थ को लेके, एग्रीकल्चर को लेके जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो स्टेट लेवल में आती हैं, और यानी कि स्टेट लिस्ट में उनको कौन डील करता है उन मैटर्स को, स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट आता है द कंकरेंट लिस्ट. मीन्स वो मैटर्स जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही डील कर सकती है, बट जो कंसीडर किया जाता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो किसको माइंड में रख के किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन को. मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन उसको लेके एग्री है, पॉजिटिव है, तो वो ही पॉलिसी बनाई जाती है. तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो सबके अलग अलग हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं. स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग मैटर्स है जो स्टेट लिस्ट में आते हैं. और कंकरेंट में दोनों की ही कंसिडरेशन होती है, बट जो एग्रीमेंट होता है, जो पॉलिसीज डिसाइड की जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है. Now next is parliamentary system. The legislature, which is the organ of the government. The legislature in the center is called the parliament or the Sansad. India has a parliamentary form of government. This means that the parliament is supreme and represent the people of the country. Means क्या करती है पार्लियामेंट, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो बिल पास होते हैं, कहाँ पे होते हैं वो, पार्लियामेंट में. तो इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, कैसा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है. Our constitution guarantees universal adult suffrage for all citizens. Means universal adult franchise for all the citizens. That is, the people of India have a direct role in electing their representatives. These representatives are accountable to the people. Means जो representative जो लोग चूज करते हैं, जिनको इलेक्शन में वोट देके, वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं लोगों के लिए. मीन्स जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो किसके लिए आंसरेबल होते हैं, लोगों के आंसरेबल होते हैं कि पीपल उनसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स. एज पर आर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स. कौन कौन से गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु मेक्स द लॉज. जो लॉज बनाते हैं वो कौन होते हैं, लेजिस्लेचर यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज. द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज. जो भी लॉज बनते हैं, यानी कि बिल पास होता है, वो कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सा ऑर्गन करता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट. It is a smaller group of elected representatives. And the last is the judiciary refers to the system of courts that interprets the laws. यानी कि अगर कोई रूल को, लॉ को ब्रेक करता है, तो उसके लिए क्या सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम है, जो इंटरप्रेट कर सकता है, बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं. The Constitution not only defines the powers of each organ, it demonstrates the responsibilities of each. सिर्फ उनको पावर ही नहीं बताते बल्कि उनकी लिमिटेशंस भी बताते हैं. Each organ act as a check on the other organs of the government. Means
यानी कि अभी लेजिस्लेचर है तो वो आंसरेबल नहीं है, नो। तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे के आंसरेबल होते हैं ताकि पावर को बैलेंस किया जा सके, यानी कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। Our constitution guarantees certain basic rights to every citizens of India, which are called fundamental rights. मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार जो इंश्योर करते हैं इक्वलिटी को। अब ये मूलभूत अधिकार क्या है? देयर आर 6 राइट्स दैट ऑल हैव टू फॉलो। फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी। इट शोज दैट ऑल आर इक्वल, ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सब लोग इक्वल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या सिंपल सा रिक्शा पुलर। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, मीन्स वी ऑल हैव राइट टू फ्रीडम, मीन्स वी हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मीन्स हम चाहें तो अपनी स्पीच दे सकते, मीन्स बोलने के लिए हम राइट है कि वी आर फ्री। हमें राइट है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द country, and the right to practice any profession, occupation or business, means no one can deny us to exercise these rights. Next is right against exploitation, means if someone deny us to exercise our right, we can raise our voice against this exploitation, means लाइक फोर्स्ड लेबर, हमसे कोई भी फोर्सफुली वर्क नहीं करवा सकता। वी हैव राइट टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और कोई ज़बरदस्ती वर्क नहीं करवा सकता, ज़बरदस्ती हमें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते। यानी कि एक्सप्लॉयटेशन में क्या कह सकते हैं? ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड द वर्किंग ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर एज ऑफ 14 ईयर्स, की अगर कोई 14 ईयर्स से कम साल के बच्चे से वर्क करवाता है तो वो क्या होगा? एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन। तो वो जो बच्चा है या कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे वॉइस रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मीन्स गवर्नमेंट हमें ये नहीं कह सकती है कोई पर्टिकुलर कि हम ये वाला रिलीजन फॉलो ना करें, ये धर्म फॉलो ना करें। नो, वी आर फ्री टू प्रैक्टिस और टू प्रोपेगेट आर रिलीजन, और इफ वी वांट टू चेंज आर रिलीजन वी कैन चेंज। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मीन्स this is the right that is given by the constitution, that we are to free to follow our culture or we can get education in any institution, no one can force us. Next is right to constitutional remedies, भी क्या देता है? ये हमें अथॉरिटी देता है कि we can move to the high court or the supreme court if we believe that any of our fundamental rights have been violated by the state, कि अगर गवर्नमेंट हमारे राइट्स को वायलेट कर रही है, उसको मिसयूज कर रही है, हमें डिनाई कर रही है, सो वी कैन गो टू कोर्ट्स। नाउ लास्ट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। राइट्स के साथ साथ कुछ प्रिंसिपल्स भी है। क्या है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव सम डायरेक्टिव्स टू द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल। These principles help the government to make social and economic reforms in the country, कि कंट्री में सोशली और इकोनॉमिकली जो भी रिफॉर्म्स, जो भी सुधार लाने होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। दे डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। क्या करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल? गवर्नमेंट के लिए क्या कहते हैं कि रिड्यूस करना है। क्या रिड्यूस करना है? पॉवर्टी को। जो लोग गरीब हैं उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाएं, एंड टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेरिटीज ऑफ द नेशन, और अपने नेशन की, कंट्री की सोशली और इकोनॉमिकली वेलफेयर, उसकी समृद्धि, उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए वर्क किया जाए। वो कौन, किसके थ्रू होता है? थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स which are given by the Constitution of India. Now, chapter is completed. You all have to frame one-word answers and questions and answers in your rough notebook.